Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well at home. I'm your science teacher, Miss Iram Naz. And before starting our today's lecture, I would request all the parents to please take care of your child. Make sure that they wash their hands and they keep themselves safe. So let us start our today's lecture, unit number 3, plant and their parts. Today we will do page number 18 and 19 of our science book. So kindly open your science book to page number 18 and 19. My dear students, this is unit number 3, plants and their parts. Today we will do page number 18 and 19 of this book. So kindly, before starting this page, write date and day on both the pages, page number 18 and page number 19. So let us begin our today's unit. We will read it thoroughly and I will explain you one by one that what is happening in this and what are you going to learn. And there are few difficult words that I would request कि पहले आप सबसे पहले मेरे साथ उसको repeat कर लें और repeat कर आप थोड़ा सा जब आपको समझ आ जाएगी then you can easily understand the unit very well. So the difficult words that you can face, the first word is herb. The first word is herb. Herb का मतलब जड़ी बूटी. Herb का मतलब जड़ी बूटी. Next word is shrub. Shrub का मतलब है झाड़ियाँ. Shrub का मतलब है झाड़ियाँ. Next word we will learn in this unit are flowers. Next word you will learn in this unit is flowers. Flowers के बारे में तो आपने पढ़ा होगा ना. Flowers का मतलब फूल. And the last unit and the last word that is very important that you will learn in the next pages, it's seed. SEED, seed. Seed का मतलब बीज. तो अब हम स्टार्ट करेंगे इस यूनिट को और आपको यहाँ पे ऊपर दो पोर्शंस नज़र आ रहे होंगे जिसमें एक रिकॉल का सेक्शन है और एक सेक्शन है जिसमें लिखा है यू विल लर्न दैट, यानी ये आप पढ़ के आ चुके हैं और ये आप आगे पढ़ेंगे. तो लेट अस स्टार्ट रीडिंग ऑफ द यूनिट. Plants are living things. In order to live, plants need good soil, air, water and sunlight. जिस तरह आपको पता है कि plants एक living thing है, एक जानदार चीज़ें हैं और उनको live, grow और मतलब बहुत अच्छी तरह groom up करने के लिए plants को we need good soil. उनको लिव करने के लिए दे नीड गुड सॉइल के बहुत ज़्यादा उनको क्या चाहिए थे. गुड सॉइल का मतलब एक बहुत सरखेज़ मट्टी. उसके बाद एयर हवा, वाटर पानी, सनलाइट सूरज की रोशनी. दीज 4 थिंग्स आर एसेंशियल फॉर द प्लांट्स टू लिव. प्लांट्स ग्रो ऑल ओवर द वर्ल्ड. प्लांट्स पूरी दुनिया में ग्रो होते हैं. इन ऑर्डर टू लिव प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट वेज. अब अल्लाह ताला ने प्लांट्स को बहुत डिफरेंट तरीके से ग्रो करने के या लिव करने के तरीके बताए हैं. Plants grow in all shapes and sizes. Some grow in the soil, on land and other grow in the water. कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि पानी में उगते हैं जैसे वाटर लिली और कुछ ऐसे हैं जो कि सॉइल में उगते हैं जैसे आपने अभी आगे इसको इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से सॉइल पे उगते हैं. Now there are types of plants. Before starting this, I will give a very quick review, a very quick example on my whiteboard. My dear students, as you can see, unit number 3, plants and their parts. Plants, they are divided according to the strength of its stem. Stem के बारे में मैं आपको जल्दी से बता दूंगी when we will reach the part of the plant. Stem कहते हैं तने के हिस्से को. वो जो हिस्सा होता है उसको हम stem कहते हैं. किसी भी प्लांट को उन्होंने कैटेगराइज किया होता है according to its stem. अगर उस प्लांट का stem hard है तो that is called trees. अगर किसी का स्टेम वुडी है और किसी का स्टेम वुडी का मतलब है कि जिसका स्टेम थोड़ा सा वुड जैसे टेक्सचर में होगा तो वो कहलाएगा श्रब्स. जिसका स्टेम का टेक्सचर सॉफ्ट एंड टेंडर, बहुत नरम और बहुत मुलायम होगा, जिसको हम बहुत इजीली ब्रेक कर सकते हैं और कट कर सकते हैं विद आवर नेल्स इवन, उसको हम कहते हैं हर्ब्स. अब नेक्स्ट है वीक स्टेम. वीक स्टेम के आगे 2 टाइप्स हैं, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स. क्रीपर्स वो वाले स्टेम्स होते हैं, बेसिकली वो वाले पौधे होते हैं जिनकी ग्रोथ है, दे ग्रो
क्लोज टू द ग्राउंड, यानी ज़मीन के ऊपर ही ऊपर वो ग्रो करते हैं, वो ऊपर नहीं चढ़ते, ना ही वो नीचे रहते हैं, ना उनका हार्ड स्टेम है या ना ही उनका सॉफ्ट स्टेम होता है। एंड द रेस्ट इज क्लाइंबर्स, दे ग्रो विद द सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स और सरफेस, यानी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको हम क्लाइंबर्स कहते हैं। क्लाइंबर्स का मतलब है कि किसी के सपोर्ट जब तक उसको ना मिले तो वो उसके साथ टच करता हुआ फिर वो ग्रो करता है, या किसी सरफेस को टच करता हुआ फिर वो ग्रो करता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम अब आगे आगे आपको थ्रू रीडिंग अपने बुक के ज़रिए आपको बताएंगे। जी माय डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ प्लांट्स, लेट अस स्टार्ट। सम प्लांट्स आर स्मॉल वाइल सम आर वेरी बिग, कुछ पौधे हैं जो बहुत छोटे होते हैं और कुछ पौधे बहुत बहुत बिग होते हैं। Shrubs are small plants with woody stems, जो shrubs होते हैं वो बहुत इस तरह की झाड़ियाँ जैसी होती हैं, वो बहुत छोटे से हाइट के होते हैं, और वो जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिनके वुडी स्टेम्स होते हैं, यानी कि उनके ब्रांचेस जो होते हैं वो इजीली हम ब्रेक कर सकते हैं थ्रू आवर हैंड्स, तो यानी कि वो बहुत वुड जैसे सॉफ्ट टेक्सचर, मतलब इतने सॉफ्ट तो नहीं लेकिन इट कैन इजीली ब्रेक, तो उनको हम shrubs कहते हैं। जैसे कि मोतिये के प्लांट, रोज़ के प्लांट, इवन के आप देख सकते हैं ये तमाम प्लांट्स जो होते हैं वो shrub की कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज herbs are plants which with tender green stems, they are often aromatic and the leaves can be used to flavor food। herbs का मतलब क्या होता है? herbs का मतलब होता है, क्या होता है जल्दी से बताएं जरा सोच के मुझे। जी, हर्ब्स का मतलब होता है जड़ी बूटियाँ। ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं जिनका जो टेंडर स्टेम होता है वो बहुत सॉफ्ट स्टेम होता है, और आप उनको फूड एरोमेटिक का मतलब खुशबू, यानी उनके जो पत्ते होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं खानों में टू फ्लेवर ऑफ द फूड, यानी खानों में जायका लाने के लिए। जैसे आपको यहाँ पे तस्वीर में कोरिएंडर नज़र आ रहा है, कोरिएंडर का मतलब धनिया। इवन कि आप मिंट लीव्स भी लिख सकते हैं, आप इसमें बेसल लीव लिख सकते हैं, तुलसी लीव्स लिख सकते हैं। तो यानी हर्ब्स बेसिकली वो लीव्स होते हैं जो वेरी स्मॉल इन साइज होते हैं, एंड दे आर यूज्ड टू फ्लेवर द फूड, एंड देयर लीव्स आर वेरी एरोमेटिक, यानी कि बहुत खुशबू वाले होते हैं। Next is creepers. Creepers are plants with weak stem. They grow along or close to the ground. जिस तरह आपको इस पिक्चर में क्रीपर की नज़र आ रही है पम्पकिन। पम्पकिन के अलावा एक और बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो कि ग्राउंड के ऊपर ऊपर ग्रो करते हैं, जैसे पम्पकिन हो गया, वाटरमेलन है, ये तमाम जो हैं क्रीपर्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी कि क्रीपर प्लांट की फैमिली से। दे ग्रो ऑन द ग्राउंड बिकॉज देयर स्टेम इज़ वेरी वेरी weak. Next is climbers. Climbers are plants which climb up other plants or surface. जैसे आपको climber में यहाँ नजर आ रहा है ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन्स का मतलब अंगूर। अंगूर जो होते हैं वो क्लाइंबर फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्लाइंबर प्लांट की फैमिली से बिलोंग करने का मतलब है कि उनको किसी न किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, किसी न किसी प्लांट के ज़रिए किसी सरफेस को टच करते हुए वो ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेप वाइन्स हैं और मनी प्लांट, दीज आर ऑल्सो climbers. Now let's proceed further to page number 19. On page number 19 आप देख सकते हैं trees are largest plant. They usually have single woody stem called the trunk. Some trees are 1,000 years old. Each year the tree grows a new ring inside the trunk. We can tell the age of the tree by counting these rings. तो बेसिकली जो बिग प्लांट होते हैं that are called trees. The big plant are called trees. They are usually have one woody stem. जिस तरह आपको ये नजर आ रहा है, इनका ये one woody क्या है? stem. It is called stem, यानी कि बहुत एक हार्ड स्टेम होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रंक। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रंक। तो अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ट्रंक बेसिकली क्या होता है। ट्रंक हमें कैसे पता चलता है कि ये ट्रीज इतने 1,000 ईयर्स ओल्ड की है या उसकी एज क्या है, यानी किसी भी ट्री की एज फाइंड आउट करनी है आपने, तो बेसिकली उसके अंदर जो होता है ना ये वाला, ईच ईयर, हर साल द ट्री ग्रोज अ न्यू रिंग इनसाइड द ट्रंक। जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा इलैबोरेट कर लूँ तो अगर हमारा ये ट्रंक का साइड है तो इसके अंदर बिल्कुल रिंग्स की तरह, एक छल्ले की तरह एक सर्कल 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 करता हुआ आपको नजर आएगा। तो इस जितने रिंग्स होंगे इसका मतलब है वो उसकी बेसिकली क्या बता रहा है? उसकी एज बता रहा है। जी माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स प्रोसीड फर्दर।
The tough protective outer layer of a tree or a woody shrub is called a bark. जिस तरह मैंने आपको कहा था, जैसे ये मैंगो ट्री है, ये पाम ट्री है एंड दिस इज अ फर ट्री, इसका ये वाला पार्ट इज कॉल्ड द ट्रंक। अब ये ट्रंक की आगे मजीद उन्होंने डिवाइड करके हमें बताया है कि जो बार्क, जो ऊपर की छाल होती है, उसको हम बार्क कहते हैं। और इसके अंदर, जिस तरह मैंने आपको यहाँ बताया था कि इसके अंदर जो रिंग्स होते हैं और जो इसके अंदर छल्ले बने होते हैं सर्कलिश फॉर्म में, उसको हम क्या कहते हैं, रिंग्स कहते हैं। और यहाँ पे हमारा एक नॉट होता है जिसको हम गिरा कहते हैं। तो आप देखिएगा ये 3 थिंग्स जो होता है वो आपको एक ट्रंक में ऑफ अ ट्री ऑलवेज आपको फाइंड होगी। तो ये यहाँ आपको बार्क को मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसको हम कहते हैं छाल, किसी भी ट्रंक का आउटर पार्ट को छाल कहते हैं एंड इसके इनसाइड जो रिंग्स होते हैं वो उसकी बताती हैं एज। तो ये हो जाएगा हमारा छल्ला एंड द नॉट इज कॉल्ड गिरा।